Hello friends, today we will discuss a very important topic of reproductive health and that is methods of contraception. इस वीडियो में हम methods of contraception को describe करेंगे in detail, ठीक है? Now, contraception का मतलब क्या होता है? What does contraception mean? Contraception means prevention of pregnancy. Prevention of pregnancy. So contraception basically is opposite of pregnancy. When we prevent the occurrence of pregnancy, it is called as contraception. Opposite to the conception is called contraception. It's also called as birth control. Since because of contraception no birth can occur, that's why it's also called as birth control. Now there are various methods by which pregnancy can be prevented. Okay, and these methods are classified into following types. Number one is called as natural method of contraception. There are many methods, we'll discuss them one by one. Then second we have barrier methods or physical methods. And number third we have IUDs or intrauterine devices. We will discuss them. Then we have chemical methods and finally surgical methods. So there are five types or methods through which we can prevent the pregnancy. Now we will discuss them one by one. Now let's see natural methods. As the name indicates, इसे नाम से ही पता चलता है, natural methods ऐसे methods हैं जिनमें कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं होता है, कोई टूल इस्तेमाल नहीं होता है, कोई ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होता है फॉर प्रिवेंटिंग दी प्रेगनेंसी. यहाँ पर क्या है, नेचुरल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स को जो है यूज किया जाता है टू प्रिवेंट दी प्रेगनेंसी. Among natural methods, पहला जो मेथड है that is called as periodic abstinence. Periodic abstinence. हम जानते हैं, we know that in females there is a monthly cycle called as menstrual cycle, and we also know that on the 14th day of the cycle the process of ovulation takes place. That is, the ovum is released on the 14th day of the menstrual cycle. So अगर हम ऐसा करें कि हम इस पीरियड को जो है ओमिट करें, ये अगर सुपर फीमेल की बॉडी में चला जाता है लेकिन ओवम अवेलेबल नहीं है, if the semen is deposited into the body of the female but the ovum is not available, what will happen? No fertilization will be there and no pregnancy. So as a precautionary measure, if a couple wants that there should be no pregnancy, if a couple wants to prevent pregnancy for many reasons, okay, if a couple wants to keep distance or space between the consecutive children, they can use this method. What is this method? That is, the couple must abstain. ये कपल क्या करेगा, ये 10 to 17th का जो डेट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, डे 10th टू डे 17th, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि 10 यूजुअली तो ओव्यूलेशन 14th को होती है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, इट वेरीज अमंग फीमेल्स, ये 11th को हो सकती है, 12th, 13th, 14th, सो ये इन दिनों में कभी भी हो सकता है. सो एक प्रिकॉशनरी मेजर है कि कपल क्या करेगा, फ्रॉम डे 10th टू डे 17th वो सेक्सुअल एक्ट नहीं करेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेंगे. सो इस पीरियड में, दिस पीरियड 10 to 17, the period of 7 days, the couple will abstain from sexual intercourse during this period. This is called as periodic abstinence. To abstain from sexual course in a particular period. What will happen when the couple will not go for sexual intercourse during this period? No fertilization will take place. Before this period or after this period, the couple can go for sexual act. There is no problem, because in those days before 10th of the month or after the 17th of the month, what will happen? The ovum will not be available, because we know the lifespan of ovum is only 2 days. The ovum can remain viable for 2 days only. Beyond 2 days it disintegrates. So that period, the period before 10th day or after 17th day of the month is called a safe period. So the couple can go for sexual act on the SAP period, during the SAP period, but they must take cautions. They must not go for sexual act during this period, this 10 to 17, and this method is called as periodic abstinence. By adapting periodic abstinence, the pregnancy can be prevented. Okay. Second method of this natural method of contraception is coitus interruptus. Coitus interruptus. That is coitus. What is coitus interruptus? That is when a male inserts his organ or reproductive organ into the body of the female. Okay, if the male withdraws its organ before ejaculation,
when the semen is not deposited. Before depositing the semen into the vagina of the female, if the male withdraws his organ, what will happen? Semen will not be deposited into the body of the female, and as such, no fertilization will take place. So this can be a method to prevent the pregnancy. अगर मेल अपना organ जो है before ejaculation, before depositing semen into the body of the female, इसको withdraw करता है, result will be no sperms will be available for fertilization. So as such, this can act as a birth control method. So understand? But these methods, these are not very reliable, क्योंकि हम जानते हैं कि coitus interrupts अगर हो भी जाता है, लेकिन फिर भी जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स होते हैं, जब वो ठीक है लुब्रिकेट करते हैं पेनिस को, तो उसके साथ भी कुछ जो है स्पर्म चली जाती हैं, तो मोस्ट लाइकली हो भी सकता है, लेकिन it can act as a birth control method. Then the third natural method that is used or can be used as a birth control method is lactational amenorrhea. That is, जब एक लेडी जो है बर्थ देती है एक बेबी को, ठीक है ना, आफ्टर दैट व्हाट इज हैपन, द बेबी सक्स द मिल्क. ओके, ये लैक्टेशन का जो प्रोसेस है, इट इनहिबिट्स द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, इट इनहिबिट्स द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन. अगर विग्रस लैक्टेशन हो रही है, बहुत ज्यादा बेबी जो दूध पी रहा है, तो ये एक फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स जो है, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है कि लैक्टेशन से क्या होता है, विग्रस लैक्टेशन से क्या होता है, मेंसेस इज स्टॉप्ड. मेंसेस इज स्टॉप्ड. मेंसेस क्यों स्टॉप हुआ? क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, जो मंथली साइकिल नहीं चल रहा है. तो इस दौरान जब लैक्टेशन हो रहा है, इस दौरान क्या हो रहा है, द कपल कैन गो फॉर सेक्सुअल एक्ट, दे कैन गो फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन बिकॉज ओवम नहीं आ रहा है. सो दिस एब्सेंस ऑफ मेंसेस ड्यूरिंग लैक्टेशन इज कॉल्ड एज लैक्टेशनल एमेनोरिया. एमेनोरिया मींस नो मेंसेस ड्यूरिंग लैक्टेशन. सो हमने कहा कि इट्स अ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, ये नर्वस एक मैकेनिज्म है, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, हार्मोन कंट्रोल मैकेनिज्म है, जिससे ड्यूरिंग लैक्टेशन, लेकिन एक चीज जरूरी है, देयर इज अ कंडीशन कि लैक्टेशन जो है विग्रस होनी चाहिए, सफिशिएंट लैक्टेशन होनी चाहिए, तभी ये हो सकता है. ठीक है, एंड इट लास्ट्स फॉर सम 6 months. It lasts for some 6 months. Lactational amenorrhea after birth, after parturition, जब बेबी मिल्क सक कर रहा है, तो इससे लैक्टेशनल एमेनोरिया होगा. कितने देर तक, कितने पीरियड तक ये चलता है? For 6 months. Up to 6 months there is no menses in the female. Okay, a mother who is nursing mother, जहां ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है. लेकिन फिर भी इट्स ऑल्सो नॉट अ रिलायबल मेथड, कभी मतलब फिर भी बीच में हो सकता है. लेकिन naturally there is no use of no medicine, no object, no instrument, nothing. ये सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इनमें, तो they can be used. Second, अब चूंकि हम जानते हैं most reliable नहीं है ये, they are not most reliable, therefore some other methods need to be used. There is one more method called as barrier method of contraception. So second is barrier method of contraception. Barrier method of contraception क्या है? नाम से पता चलता है, ये मेथड वो मेथड है जहां पर एक बैरियर स्टैंड किया जाता है, राइज किया जाता है. ठीक है, अ बैरियर इज बैरियर इज क्रिएटेड बिटवीन द स्पर्म एंड द ओवम. सो बैरियर मेथड्स ऐसे मेथड्स हैं जहां पर कुछ फिजिकल स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल होते हैं टू प्रिवेंट द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विद द ओवम, टू प्रिवेंट द कंटैक्ट ऑफ द स्पर्म मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट. So when such objects, physical structures are used to prevent the pregnancy, to prevent the fusion of the male and female gamete, this is called as barrier method of contraception. ठीक है, तो barrier method of contraception जो है, these are used by both males as well as females. Barrier methods मेल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फीमेल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ना बैरियर मेथड्स में सबसे पहली चीज जो इस्तेमाल होती है दैट इज कॉन्डोम्स. ठीक है, वी आर ऑल अवेयर ऑफ दीज कॉन्डोम्स, कॉमनली कॉल्ड एज, जो इंडिया में एक कॉमन लैंग्वेज में है, निरोध एक ब्रांड नेम है कॉन्डोम्स का, वो बहुत कॉमन है. सो कॉन्डोम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ लैटेक्स और फाइन रबर. ठीक है ना, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है. These condoms can be used by both males as well as females. The condom is used by male are called condoms and the condom is used by females are called as femidoms. Now ये condom नाम कैसे आ गया? Basically the person who first of all developed this structure, this object,
his name was Dr. Condom. Okay, after his name, this has been named as condom. Fine. So the condoms, these are two black structures made up of these latex or rubber. Fine, very fine, which can be put over the male reproductive organ, that is penis, or the females can also use them. ये क्या होता है, तो जब इससे क्या होता है, जो semen जो है, it does not come in direct contact with the ovum, or it does not go to the reproductive tract of the female. Then और एक मेथड है, और एक चीज है जो हम बैरियर एज अ बैरियर इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड दैट इज यूज बाय ओनली फीमेल्स. दैट्स यूज्ड बाय ओनली फीमेल्स. वो क्या है? दैट इज सर्वाइकल कैप्स. तो कुछ कैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल फाइन कैप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो फीमेल के अंदर जो है सर्विक्स में रखे जाते हैं. ओके, ये ब्लाइंड होते हैं ऑन वन एंड, और जब सेक्सुअल एक्ट होगा तो व्हाट विल हैपन, दे स्टोर दिस स्पर्म. उसके बाद सेक्सुअल एक्ट के बाद फीमेल इसको रिमूव करती है, तो स्पर्म अंदर नहीं चला जाएगा, स्पर्म का कांटेक्ट जो है ओवम के साथ नहीं होगा. सर्विकल कैप्स आर आल्सो कॉल्ड एज वॉल्ट्स. वॉल्ट आल्सो मींस अ कैप, a cap-like structure, or they are also called as diaphragms. They are synonyms. Cervical caps, warts, diaphragms, they differ only a bit in their shape. Otherwise, the function is same, to prevent the entry of the sperm into the female genital tract beyond the cervix. Fine. And we must remember that these cervical caps or warts or diaphragms, they are only used by females. What males use? Males use condoms. जब ये males या females जब ये चीजें इस्तेमाल करते हैं, whether condoms और femidooms या cervical caps whatever, तो इसके साथ साथ में कभी वो इनके साथ कुछ क्रीम्स लगाते हैं जिनको spermicidal creams कहते हैं. Spermicidal creams. Okay? ये spermicidal creams क्या करते हैं? एक तो हम जानते हैं कि फिजिकल जो बैरियर्स होंगे, दे विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. एट द सेम टाइम अगर कोई अंदेशा रह भी जाता है, इफ देयर इज सम लाइकलीहुड, ओके, सम चांस दैट मे बी some sperms ooze out from here and there and they get into, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए spermicidal creams होते हैं which kill sperms. अगर कोई sperm चला भी जाता है, that is killed. Then we have third category of these contraceptives called as IUDs, intrauterine devices. ये intrauterine devices जो है, these are certain structures which are put into the female genital tract, particularly uterus. हम intrauterine बात करते हैं यूट्रस की, तो ये इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो है, these are the structures, these are the objects which are placed inside the uterus of the females. Okay, and by यहां पर जो है, this cannot be used by a person on by his own. ये खुद एक पर्सन इस्तेमाल नहीं कर सकता. These are inserted or implanted by professionals. डॉक्टर्स जो है वो इनको इम्प्लांट करते हैं. यहां पर प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है. अब नेचुरल मेथड में कोई प्रोफेशनल की जरूरत नहीं पड़ती है, बेरर मेथड में कोई प्रोफेशनल की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आईयूडीज जो है यहां पर प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है जो इन चीजों को इम्प्लांट कर सकता है विद इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल. सो अब ये आईयूडी जो है, इसमें पहला जो आईयूडी है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, दैट इज नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज. द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ आईयूडीज इज नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज. ये ऐसे आईयूडीज हैं जो नॉन मेडिकेटेड, इनमें कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं होता है. कोई स्ट्रक्चर हम यूट्रस के अंदर लगाते हैं, लेकिन कोई उसके साथ मेडिसिन एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता है. तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज आर द आईयूडीज व्हिच आर विदाउट एनी केमिकल और एनी मेडिसिन. एंड यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, दैट इज लिपीज लूप. The example of non-medicated IUD is Lippis loop. Lippis, basically Lippis is the name of the doctor, Dr. Lippis. Okay, Dr. Lippis. जब ये बेरियर मेथड्स कहीं पर फेल, हम जानते हैं बेरियर मेथड्स कहीं पर फेल हो जाते हैं, नेचुरल मेथड्स फेल हो रहे हैं, बेरियर मेथड्स फेल हो रहे हैं, तो जो है पॉपुलेशन के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक अर्ज, एक डिमांड थी कि कुछ ऐसा होना चाहिए which will ensure that no pregnancy takes place. तो डॉक्टर लिपीज ने जो है इस पे काम किया और उसने एक डेवलप किया, एक चीज उसने डेवलप की, एक डिवाइस उसने डेवलप की. दैट डिवाइस वाज नेम्ड एज लिपीज लूप. नाउ ये लिपीज लूप है क्या? ये लिपीज लूप बेसिकली क्या है? इट इज डबल एस शेप्ड स्ट्रक्चर. नाउ दिस इज वन एस, then second S. This double S shaped structure is called a Lippis loop. This double S shaped structure was developed by Dr. Lippis and this is implanted in the uterus. को इस double S को यूट्रस में लगाते हैं, तो फिर क्या करता है ये यूट्रस, जब ये यूट्रस के अंदर लगाते हैं, it increases the phagocytosis of the sperms. एक तो ये बात कहता है. दूसरा जो है ये यूट्रस को जो है नॉन कंडीसिव बनाता है फॉर इम्प्लांटेशन. तो इससे यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं होता है. तो ये प्लास्टिक का बना होता है, इट्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक. सो इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, इट प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी. लिपिज लूप, नॉन मेडिकेटेड. सेकंड कैटेगरी ऑफ आईयूडीज जो है वो है कॉपर टी.
कॉपर टी. ओके, सो कॉपर टी क्या है? इट्स मेड अप ऑफ कॉपर. ओके, इट्स लाइक दिस कॉपर टी. तो कॉपर टी जो है इसको यूट्रस के अंदर रख दिया जाता है. ये कॉपर टी, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ दिस कॉपर टीज. नंबर 1 इज कॉल्ड कॉपर टी, नंबर 2 इज कॉल्ड कॉपर Cu7, थर्ड इज कॉल्ड मल्टीलोड 375. ऑल ऑफ दीज आर कॉपर कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स. ये क्या करते हैं? ये कॉपर को रिलीज करते हैं. दीज कॉपर टी स्लोली रिलीज अमाउंट ऑफ कॉपर इन द यूट्रस. और ये कॉपर जब यूट्रस में चला जाता है, व्हाट डज कॉपर डू? कॉपर इट परफॉर्म्स टू इंपॉर्टेंट फंक्शन. नंबर 1, इट डिक्रीजेस स्पर्म मोटिलिटी. इस स्पर्म का जो मूवमेंट है ना उसको डिक्रीज करता है. जब स्पर्म का मूवमेंट डिक्रीज हो गया तो स्पर्म ऊपर चलेगा नहीं. स्पर्म विल नॉट स्विम अप टू द फैलोपियन ट्यूब. जब फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा नहीं, ठीक है, तो क्या होगा? नो फर्टिलाइजेशन. सेकंड, इट इंक्रीज द स्पर्म मोर्टेलिटी. इट इंक्रीजेस द डेथ रेट ऑफ स्पर्म्स. मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ स्पर्म इज डाई. हमने फर्टिलाइजेशन में देखा था कि ओनली 100 आउट ऑफ 200 to 300 मिलियन स्पर्म, ओनली 100 sperm reach the fallopian tube. अब यहां पर तो मास के लिए एक तो वजन में होगा, एसिडिक पीएच है, एंटीबॉडीज है, कुछ सारा हो रहा है, लेकिन यूट्रस में भी जो कुछ बचा हुआ पहुंचता है वो कॉपर उसको क्या करता है? कॉपर किल्स. सो कॉपर इट डिक्रीजेस स्पर्म मोटिलिटी, मूवमेंट ऑफ स्पर्म, एंड इट इंक्रीजेस स्पर्म डेथ रेट, मोर्टेलिटी. फाइन. देन देयर इज थर्ड कैटेगरी ऑफ आयोडीज एंड दैट इज हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज. अब कुछ ऐसे आयोडीज हैं जो हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन उनको रिलीज करता है. हम जानते हैं ये जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होते हैं ये कैसे काम करते हैं? दे इनहिबिट और दे प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ द जायगोट. ये फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट नहीं करते हैं. ये किसको प्रिवेंट करते हैं? फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद ये प्रिवेंट करते हैं ये जायगोट को, ये मरूला को इम्प्लांट नहीं होने देते हैं विद द यूट्रस. जब मरूला या जायगोट इम्प्लांट नहीं होगा, मेंसेस होगी, एबॉर्शन होगी, ठीक है, और क्या होगा? क्या नाम है? प्रेगनेंसी नहीं होगी. यहां पर एग्जाम्पल जो है LNG20 एंड प्रोजेस्टासट, प्रोजेस्टोन इंसर्ट, प्रोजेस्टासट, ठीक है. तो ये क्या करते हैं? इंप्लांटेशन को प्रिवेंट करते हैं. और हमने देखा कि ये आयोडीज और एक काम करते हैं, दे इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म. स्पर्म का फैगोसाइटोसिस इंक्रीज होता है और स्पर्म की जो है डेथ हो जाती है. तो एज सच हम देख रहे हैं कि ये कुछ मेथड जो हमने डिस्कस किए इनका काम है इधर टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन और टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन. Welcome back, friends. In this video we will continue with the methods of contraception. In previous video we discussed certain methods, 3 methods, so natural methods, barrier methods and IUDs. In this video we will discuss the chemical methods and other surgical methods of contraception, chemical methods. As the name indicates that in these methods certain chemicals are used to prevent the pregnancy, okay, through different methods, through different ways. In chemical methods, the method number 1 is use of spermicidal chemicals. Chemical methods में method number 1 है spermicidals, use of spermicidals. Spermicidals ऐसे chemicals है which can be used in the form of tablets, in the form of creams, in the form of jellies, in the form of foams. Different forms में हम इन chemicals को इस्तेमाल कर सकते हैं. ये spermicidals क्या है? जैसे नाम से पता है, as the name indicates, these are the chemicals which kill sperms. So कौन से chemicals हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं in different forms, in the form of paste, in the form of liquid, in the form of pill? वो है number 1 lactic acid. Lactic acid is a spermicidal, it kills the sperms. Second is potassium permanganate. Potassium permanganate also kills the sperms. Third spermicidal जो है वो है citric acid. Citric acid also acts as a sperm killer. Then zinc ions, zinc creams are used by the females. These are used by females, okay? ये जो spermicidals हैं, they are used by females. ये females अपने reproductive tract में वाजिना जो है इस्तेमाल करती हैं, ओके, अप्लाई करती है. उसके बाद ये किल करते हैं स्पर्म्स को. जिंक क्रीम्स भी किल करते हैं स्पर्म्स. सेकेंड केमिकल मेथड जो है वो है यूज ऑफ हार्मोनल पिल्स और हार्मोन पिल्स. हार्मोन पिल्स जो है ये ऐसी पिल्स होते हैं विच आर टेकन ऑरली बाय द फीमेल्स. दीज आर टेकन ऑरली बाय फीमेल्स. ये फीमेल्स ऑरली इस्तेमाल करती हैं एंड ये फीमेल्स जो है प्रेफर करती हैं. दिस इज द प्रेफर्ड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन. अब ये हार्मोन पिल्स क्या है? बेसिकली दीज आर ईदर मेड अप ऑफ प्रोजेस्टेरोन ओनली और they can be combination pills that is containing both progesterone and estrogen. So hormone pills can either contain progesterone only or they can contain both progesterone and estrogen.
बोथ। ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये क्या काम करते हैं? ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन पिल जब फीमेल लेती है, ये जो है दे इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच। ओके, तो ये हार्मोन पिल व्हेन अ फीमेल takes in the hormone pill containing progesterone and estrogen, these hormone pills, these progesterone and estrogen higher concentration में जब अंदर चला जाता है, so what happens, the secretion of FSH and LH is inhibited. जब FSH and LH inhibit होगा, what will happen as a result? No ovulation, ovulation नहीं होगा, और जब ovulation नहीं होगा तो fertilization नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी। Now किस तरह से ये pills ली जाती हैं? To the females, these pills are recommended. Females are recommended. They are recommended. They are guided to start taking pills from the 5th or 6th day of menstruation. जब menstrual cycle start हो गया, उसके 5th या 6th day से एक फीमेल को स्टार्ट करना होता है टू टेकिंग द पिल्स। एक ट्रिप में 21 पिल्स होती है। देन अ फीमेल कंटिन्यूज टेकिंग दिस पिल्स ऑरली फॉर 21 डेज। ओके, 21 डेज। 21 डेज के बाद गैप ऑफ 7 डे होगा, फिर साइकिल, फिर फ्रॉम द 5th एंड 6th अगेन दिस विल बी स्टार्टेड। सो ये मंथली 21 दिन तक ये पिल्स उनको लेनी होती है टिल दे विश to distance the pregnancy, till the time they do not want to have pregnancy। जब तक वो pregnancy नहीं चाहेंगे वो इस तरह से इस्तेमाल करते रहेंगे। सो नाउ यहाँ जो कॉमन एग्जाम्पल है, सबसे कॉमन जो इंडिया में पिल इस्तेमाल होते हैं दैट इज माला डी। याद रखना चाहिए ये माला डी जो है या ये जो हार्मोन पिल्स है, ओके, दीज आर स्टेरॉयडल पिल्स बिकॉज प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन आर स्टेरॉइड्स। नाउ इट हैज बीन सीन दैट these steroidal pills have certain side effects. That's why the Indian government and Indian scientific research laboratories were trying to develop something which is नॉन स्टेरॉयडल। कोई ऐसी चीज बनाए जो नॉन स्टेरॉयडल हो और जो साइड इफेक्ट्स कम हो। एंड एज अ रिजल्ट CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, उन्होंने जो है दे डेवलप्ड अ पिल व्हिच इज नॉन स्टेरॉयडल। उन्होंने एक पिल डेवलप की जो जिसमें प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन नहीं है बल्कि एक नॉन स्टेरॉयडल केमिकल है एंड दैट केमिकल इज कॉल्ड एज कैटाक्रोमिन। नाउ दिस पिल हैज बीन नेम्ड एज सहेली एंड दिस पिल हैज बीन नेम्ड एज सहेली। सो सहेली is a non-steroidal pill developed within India by CDRI Lucknow, very important, and it contains a chemical called catechromin. There's one more important thing about this catechromin or saheli, that it is to be taken once a week only. ये females को daily नहीं लेनी है, once a week भी females ले सकती है। सो हमने देखा कि हार्मोन पिल्स किस तरह से जो है प्रेगनेंसी को स्टॉप करती है या प्रिवेंट करती है। दे प्रिवेंट बाय इनहिबिटिंग एफएसएच एंड एलएच। देन देयर इज वन मोर मेथड ऑफ केमिकल दिस प्रिवेंशन ऑफ केमिकल कंट्रासेप्शन दैट इज इम्प्लांट्स। अब इम्प्लांट्स क्या है? इम्प्लांट्स आर आल्सो हार्मोन्स। लेकिन ये क्या होता है बेसिकली, यहां पर हार्मोन्स जो है इन द फॉर्म ऑफ पिल्स नहीं ली जाते हैं, but hormones are take implants. These are basically hormonal cytics. These are match cytic size structures. जिस तरह एक match cytic होते हैं इसी तरह का एक cytic होता है या hormonal cytic होता है, flat होता है। These are match cytic size hormonal these structures or objects which are implanted, which are placed below the skin subcutaneously. These are subcutaneous. These are placed below the skin. ओके, जब बिलो द स्किन इसको रखते हैं, नाउ ये क्या काम करते हैं? स्लोली दे रिलीज द हार्मोन्स, दे रिलीज द हार्मोन्स स्लोली। ओके, रिलीज हार्मोन्स, दे रिलीज द हार्मोन्स स्लोली। एंड यही फायदा है कि इम्प्लांट जो है दे गिव कंट्रासेप्शन और प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेगनेंसी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, ऑलमोस्ट अप टू 5 years। 5 years तक एक बार इम्प्लांट जो है सबक्यूटेनियसली प्लेस किया गया, नाउ दिस विल प्रिवेंट प्रेगनेंसी फॉर ऑलमोस्ट 5 years। 5 years के बाद फिर से अगर लेडी चाहती है तो फिर से इम्प्लांट किया जाएगा, अदरवाइज इफ द लेडी वांट्स टू कंसीव दे कैन गो फॉर कंसेप्शन। दे वर्क on the similar principle of the pills। जिस तरह पिल्स काम करते हैं दैट इज, यहाँ हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन है, अब ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन स्लोली रिलीज हो रहा है एंड दे इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच एंड ओवुलेशन इज स्टॉप्ड। ओवुलेशन स्टॉप होगा तो देयर विल बी नो प्रेगनेंसी, नो फर्टिलाइजेशन, नो प्रेगनेंसी। देन देयर आर नाउअडेज हार्मोन इंजेक्शंस आर गिवन। हार्मोन injections are nowadays given. Now these hormone injections are given every 3 months। Every
3 months. If the female does not want a longer distance between the children, अगर फीमेल नहीं चाहती कि 5 साल तक मुझे रुकना पड़े, तो क्या करती है, अब पिल्स भी नहीं लेती है, हार्मोन इंजेक्शन करती है. हर एक हार्मोन इंजेक्शन कितने महीने तक? हार्मोन इंजेक्शन गिव्स प्रोटेक्शन for 3 months. That is why after every 3 months the new injection is given, and if the female wants to conceive, injection can be stopped. Then there is one more method, okay, fifth method of birth control, that is called surgical methods. Surgical methods में कोई chemical इस्तेमाल नहीं होता. यहाँ पर क्या होता है, the transport of gametes is prevented. टेस्टिस से स्पर्म को नहीं जो है ट्रांसपोर्ट होने दिया जाएगा. इसी तरह से जो है ओवरी से एग को ट्रांसपोर्ट नहीं होने दिया जाएगा. सो इन सर्जिकल मेथड्स द ट्रांसपोर्ट pathways they are cut, they are stopped, they are severed, they are cut, so surgical methods में क्या होता है, the transport of gametes is stopped. Transport of gametes is stopped. In surgical methods, transport of gametes is stopped. Now in males and in females there are two separate methods. In males the surgical method is called as vasectomy. What is vasectomy? Vasectomy में क्या होता है, vas deferens जो होता है, जो टेस्टिस से निकलता है, एपिडाइडिमिस के बाद वास डिफरेंस होता है, दैट वास डिफरेंस इज कट. ये वास डिफरेंस कट किया जाता है और जो कट एंड्स होते हैं, दोस कट एंड्स आर टाइड अप, दैट्स कॉल्ड अ लाइगेशन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज टेस्टिस, ओके, दिस इज एपिडाइडिमिस एंड दिस इज वास डिफरेंस. फॉर एग्जाम्पल दिस इज वास डिफरेंस. नाउ व्हाट इज बीइंग डन, क्या होता है, दिस वास डिफरेंस इज कट, ओके, दिस वास डिफरेंस इज कट, और जो कट एंड है इट इज लाइगेटेड, यहां गांठ बांध दी जाती है, इज लाइगेटेड. दिस वन इज आल्सो, दिस कट एंड इज आल्सो लाइगेटेड. कट हो गया, लाइगेट हो गया. दिस कटिंग ऑफ वास डिफरेंस एंड इट्स लाइगेशन इज कॉल्ड एज वासेक्टोमी. इससे क्या होगा, नाउ स्पर्म्स विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू द पेनिस एंड देयरफॉर नो डिपोजिशन, नो इंसेमिनेशन विल टेक प्लेस, नो फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस. सिमिलरली इन फीमेल्स ट्यूबेक्टोमी इज डन. दैट इज जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है, इसी तरह से कट किया जाता है, एंड देन द कट एंड्स आर लाइगेटेड. फिर कट एंड्स को जो है टाई किया जाता है. तो व्हाट विल हैपन, अब जब एग रिलीज होगा, लेकिन एग जो है फैलोपियन ट्यूब के बाहर फिर नहीं पहुंच पाएगा, अंदर नहीं पहुंच पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. अगर स्पर्म आ भी रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, एंड एज सच द प्रेगनेंसी विल बी प्रिवेंटेड. नाउ अब यहां एक और चीज है, आप पूछ सकते हैं कि सर अगर कट एंड्स को कट किया गया या बीच में कट किया, वास्तव फिर लाइगेट करके रिमूव ही क्यों नहीं करते? रिमूव इसलिए नहीं करते ताकि वहां पर एक रिवर्सिबिलिटी की पॉसिबिलिटी रहे. ओके, टू कीप द पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर्सिबिलिटी. अगर कभी ये बंदा जो चाहता है या बंदी जो ये लेडी चाहती है कि नहीं मैं फिर से कंसीव करना चाहती हूं, तो उस टाइम क्या होगा, अगेन सर्जरी होगी और ये जो कट एंड से इनको फ्यूज किया जाएगा. हालांकि द रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी इज वेरी लो. ठीक है, ये फिर सक्सेसफुल नहीं होता है, इसकी रेट बहुत कम है, लेकिन chances are there that the cut ends can again be joined together, so that the transport pathway is restored. There is one more method जो birth control method में नहीं आता है, लेकिन उससे birth control हो सकता है, and those methods are irreversible or they are permanent. One in males it is called as castration. In males castration क्या है, the disintegration of the testes. Testes are squeezed or disintegrated, या testes are removed. Okay, removal of testes is called testectomy or orchidectomy, or they are disintegrated, they are squeezed, that's called castration. जब testes को खत्म किया जाएगा, मैश किया जाएगा, तो स्पर्म नहीं बनेगा, तो ये परमानेंट मेथड. या टेस्टिस को रिमूव ही किया जाएगा तो स्पर्म नहीं आएगा, ये परमानेंट मेथड है. हाँ, इसे कंट्रोल हो सकता है, ये मेथड नहीं है लेकिन इसे कंट्रोल हो सकता है. ये रिवर्स, इसको हम बर्थ कंट्रोल मेथड्स में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि बर्थ कंट्रोल मेथड्स ऐसे मेथड्स होते हैं जो रिवर्सिबल हो, जहां चांस ऑफ रिवर्सिबिलिटी हो. यहां चांस ऑफ रिवर्सिबिलिटी नहीं है. सेकंड जो है ओवेरेक्टोमी. अगर फीमेल में ओवरी को रिमूव किया जाए तो ओवम नहीं आएगा, ओवम नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ये भी परमानेंट है. रिमूवल ऑफ ओवरी इज कॉल्ड एज ओवेरेक्टोमी. सो एज सच we observed, we discussed different methods of birth control and how they work. Right? In next video we'll be discussing very important topic of this, that is MTP, medical termination of pregnancy. Thank you very much.